हाँ, मेरे ख्याल में टाइम पे खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि वो पीपल विल कीप ज्वाइनिंग। आप पहले अपना जो इंट्रोडक्टरी है वो तो शुरू करें। ठीक है डॉक्टर जैदी, कैन यू प्लीज स्टॉप शेयर ताकि मैं स्टार्ट कर दूं तक। All right, all right, all right. थैंक यू वेरी मच। Assalamu alaikum. My name is Kiran Amir and I'm the Director of Operations at Parsa Eco Pakistan Super Hub. I would like to welcome you all to the fifth session in our series of Hepatitis Eco. It's in collaboration with Pakistan Society of Hepatology. Please join the session through the iEcho email link to mark your attendance. We would also like to extend our gratitude to Gets Pharma for their ongoing campaign, Hep Aware, Your Knowledge, Their Lifeline, under which this program is designed. This program consists of six sessions based on the New World Health Organization guidelines for hepatitis B for primary care physicians. Before I introduce you to our expert for tonight's session, we have to go through some standard announcements. We are part of a global movement called Project ECHO based in USA, aiming to disseminate knowledge and best practices. Parsa Eco Pakistan started as a hub in 2017 and became the first super hub in Pakistan in 2021. Our objective is for the community providers to learn through video technology, participating in guided practice with specialist mentors. This allows them to treat patients otherwise referred out, ensuring patients with chronic condition receive high quality care without the need to travel and long waits. We protect patient privacy, so no information in this session will identify any individual or patient. For maintaining discipline, you all are muted. However, we encourage participation, so you can unmute yourself for question, use the raise hand option and chat box. By participating, you have given the consent for recording. The recorded session will be available on request. For CME credits, please get in touch with Uzair. CME credits are affiliated with Janas and Medical University. Uzair will share the Google form at the end of the session, which will be active for 12 hours. Please fill it as soon as possible to avail the opportunities of CMEs. For the convenience of the participant, the session is bilingual. Please speak in Urdu and English, whichever language you are comfortable in. Our expert for today's session is Dr. Saeed Asif Raza Zaidi, is a distinguished consultant gastroenterologist currently practicing at Farooq Hospital, Iqbal Town branch, Lahore. In addition to his role at Farooq Hospital, he serves as assistant professor of gastroenterology at Sheikh Zayed Hospital, Lahore. His expertise extends to the treatment of liver cancer, reflecting his commitment to providing comprehensive care in the field of gastroenterology. We have two cases today, and Dr. Amna will be our case presenter. So without further delay, I will hand over to Dr. Amna. You, Dr. Amna? Case number 1, a 5 years old female. डॉक्टर आमना, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? मैम आवाज। We cannot hear you, Amna. वॉल्यूम जरा ऊंचा कर दीजिए। मेरे ख्याल में आमना के माइक का प्रॉब्लम है। Okay, I can present this case. This is very easy. I mean, मैं कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं शेयर कर लेता हूँ। Let me एक सेकंड, let me start. मैं करता हूँ, आप 2 मिनट दे दें। All right, all right. Okay, so just I'm going through your case. Usually, Asif, first of all, thank you very much for being with us. आपका इस टाइम में और टाइम देना, तो बेसिकली ये हमने एक हेपेटाइटिस बी का एक पूरा पहले तो ओवरव्यू लिया था फर्स्ट टॉक में, उसके बाद से वी आर डिस्कसिंग रेलेवेंट केसेस, और ये यूजुअली ये जो हैं ये रियल लाइफ केसेस हैं। तो ये जो पेशेंट फर्स्ट हैं, 45 years old female who presents in outdoor with jaundice, yellow discoloration of eyes, fatigue and nausea for 2 to 3 weeks.
no known comorbidities, no family history of liver cancer. On examination, abdomen was soft, non-tender, और अल्ट्रासाउंड पे लिवर वाज माइल्ड कोर्स, so उसका टेक्सचर था विद फैटी इन्फिल्ट्रेशन. देयर इज नो स्प्लेनोमेगाली और एसाइटिस. तो लैब्स आपके सामने हैं. जो सीबीसी इज फाइन, क्रिएटिनिन इज फाइन, बिलिरुबिन 5.8 है, एएलटी 195, एएसटी 159, alkaline phosphatase 168, gamma GT 116, surface antigen positive, anti-HCV भी पॉजिटिव था, E एंटीजन इज पॉजिटिव. वायरल लोड जो है ये तकरीबन हेपेटाइटिस सी का 2 मिलियन यूनिट से अबव है, और इसी तरह जो बी का भी 1.5 मिलियन यूनिट्स, 1.5 मिलियन से. So basically, we have a patient presenting with jaundice and a picture of acute hepatitis, both hepatitis B and C positive. So the main questions are, what other investigations should be done in this patient? How to manage this patient? और अगर antiviral देनी है तो should we start antiviral immediately? And this holds for both hepatitis B and hepatitis C. So I'm going to stop share here and over to you, Asif. All right, sir. This is the case, which is a very interesting case. और ये this is acute viral hepatitis. आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं? जी हम देख सकते हैं आप. All right. So this is acute viral hepatitis, and what is going on is इसमें I would like to ask all the general practitioners and those who are working as a consultants that we need to take detailed history of any blood transfusions, any dental procedures, any beauty parlor, any occupational hazards like staff nurse hai or doctor hai, healthcare worker hai. So we will be taking the detailed history. Of course, ये क्योंकि दोनों को infection है, तो we will be having anti-HIV done in this patient, and B भी positive है, तो हम इसमें anti-HDV, IgM भी बिल्कुल जरूर कराएंगे. बाकी तो हमारे पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं, और जिसमें acute viral hepatitis है और साथ में को इन्फेक्शन है जिसमें तमाम ALT, AST बहुत बड़ा हुआ है, bilirubin is very high, 5.8, with high viral load of C and high viral load of B. So abdominal ultrasound is saying that she's got a mild coarse liver fracture with a fatty infiltration. इसके लिए I would like to discuss with the radiologist for the portal vein size and the spleen size, and you must be examining this patient by yourself for spleen and other stigmas of liver disease. वो वहाँ पे हैं या नहीं है. साथ में क्योंकि कोर्स एकोटेक्सचर है, फैटी लिवर है, तो विल बी प्रॉब्ली थिंकिंग फॉर डूइंग फाइब्रोस्कैन. एंड ऑब्वियसली दोनों चीजें पॉजिटिव हैं, तो एक्यूट वायरल हेपेटाइटिस सी भी है और बी भी है, तो हम इन दोनों को बड़े आराम से साथ ही ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें AASLD की भी, ईजल की भी और एपाजल की रिकमेंडेशंस हैं, जिसमें हम डायरेक्ट एंटीवायरल स्टार्ट कर सकते हैं सी के लिए, और फिर साथ में बी के शुरू में भी और आखिर में भी बी के लिए ट्रीटमेंट साथ में दी जा सकती है. तो इसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं. ये एक रिकमेंडेशन है ईजल की, जिसमें कहा गया है कि पेशेंट्स को इन्फेक्टेड विद HCV and B should be tested for HIV for their HIV status if unknown previously, and patient with co-infection with C and HBV should be treated with the same anti-HCV regimes following the same rule as the patient with the HCV mono infections. Patient co-infected with C and B fulfilling the standard criteria of the treatment, यानी अगर B का ट्रीटमेंट क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो आप उसको ट्रीटमेंट देंगे. लाइक AST उसका बड़ा हुआ है, हाई वायरल लोड है, E एंटीजन पॉजिटिव है,
तो you need to start the therapy. Patient who are surface antigen negative, positive should receive nucleoside analog inhibit prophylaxis for at least 12 weeks post HCV treatment. यहाँ पे एक मैं बात बताना चलूँ कि जब ये को इन्फेक्शंस होते हैं तो सी लीड करता है, और जब हम सी को ट्रीट करते हैं तो बिफोर द ट्रीटमेंट, दरमियान में और उसके बाद बी की एक्टिवेशन हो सकती है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे एक प्रोफाइलेक्सिस का जो B1 बताया गया है, जिसकी ग्रेडिंग की गई है कि आप कम से कम इतना तो दो कि प्रोफाइलेक्सिस स्टार्ट भी करें और 12 हफ्ते तक उसको मॉनिटर करें जब आप सी को ट्रीट करें, क्योंकि जब बी और सी दोनों साथ हों तो देर आर हायर चांसेस ऑफ पेशेंट हैविंग acute liver failure, patient can be having decompensated liver disease, or patient is having going to have hepatocellular carcinoma. तो इनको आपने बिल्कुल फौरी तौर पे ट्रीट करना है और बी और सी की दवाई देनी है। उसके बाद इन पेशेंट हु आर सरफेस एंटीजन नेगेटिव but anti-HBC positive, serum ALT level should be monitored monthly to detect possible reactivation. इसमें वो कहता है कि जी आपने anti-HBC कोर भी करा लेना है और ALT को मॉनिटर करते रहना है ताकि हम reactivation of hepatitis B को देख सकें। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि co-infection C and B level is often low, जैसे मैंने बताया, although it is may fluctuate widely, and hepatitis C usually the main driver of the chronic inflammatory activity. Patient should be carefully characterized for the replicative status and the presence of delta, जैसे हमने पहले इसकी investigation में भी जिक्र किया। HCV और B co-infection ये HCC की तरफ ले जाता है बहुत जल्द, लिवर फेलियर की तरफ ले जा सकता है, एंड डीकम्पनसेटेड लिवर डिजीज की तरफ ले जा सकता है। एंड ड्यू टू इंटरप्ले ऑफ द टू वायरसेस, पॉसिबिलिटी ऑफ द आइदर वायरस टू रीएक्टिवेट व्हेन एन एंटीवायरल ट्रीटमेंट गिवन टू इरेडिकेट वन वायरस। सो ये एक हमारा रिवाइज इंटरनेशनल गाइडेंस है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ HCV एंड HBV को-इन्फेक्शन, जिसमें ईजल कहती है कि आप मे गेट द सेम एंटी-HCV ट्रीटमेंट, आपने इसको ट्रीट करें, and HCV 2022 guidelines should be followed by the treating patient with co-infection who meet the HBV treatment. So आपने हेपेटाइटिस बी देना है, और वही बात दोबारा आ गई कि आपने प्रोफिलैक्सिस के लिए भी 12 वीक्स के तक आपने प्रोफिलैक्सिस बी की देनी है when you are treating for HCV. Once HCV medication has been stopped, HBV activity should be monitored. तो वो देखते रहे। AASLD की गाइडलाइन है, वो भी यही कहती है कि प्रैक्टिस गाइडलाइंस ऑफर सेवरल सजेशन फॉर द न्यूक्स प्रिवेंशन दोज हु आर को-इन्फेक्टेड. HBV recommendation state that the blood HBV DNA and ALT should be used to determine HBV therapy for those with HBV mono-infection. DNA levels of HBV should be checked every 4 to 8 weeks while taking direct antivirals, and every 3 months after individuals have not had nukes therapy before starting a direct antiviral. And उसके बाद कहते हैं कि surface antigen and HBV testing only individuals who have ALT flares while they are qualified for the direct antiviral therapy. इसमें अपोजल भी although यही बात करते हैं कि co-infection को आपने ट्रीट करना है और रीएक्टिवेशन के लिए 24 वीक्स तक देखना है। वहां पे यहाँ पे 12 हफ्ते की बात की जा रही है, 4 to 8 वीक्स, एंड 12 हफ्ते की बात की जा रही है, यहाँ पे 24 वीक्स की बात की जा रही है। Since it is anticipated HCV direct antiviral won't have a direct and immunomodulatory influence on the HBV replication, it is recommended that the use of HBV infection should be evaluated before फ्री regimes आपने जब यूज करनी है तो आपने बी की रेप्लिकेशन को देखते रहना, वही बात इसने दोबारा की है। So yes, Dr. Asad, we need to treat this patient with direct antivirals, sofosbuvir and velpatasvir, and give treatment for HBV simultaneously and keep an eye on HBV replication. थैंक यू आसिफ। अगर आप थोड़ा सा स्टॉप शेयर करें, मैं मेन स्क्रीन पे चला। ओके,
इसमें अगर आप ऑडियंस में किसी का कोई क्वेश्चन है, देयर इज अ फ्यू कमेंट्स जो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। जनरली अभी तो हम केस डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस में मेरे पास यूजुअली जॉन्डिस में इस तरह से पेशेंट आते हैं, तो मैं ए और ई भी चेक कर लेता हूँ, क्योंकि ए आई जी एम और ई आई जी एम इस पर्टिकुलर केस में ट्रांसएमिनेसेस उतने हाई नहीं थे। आमतौर पर तो आपको पता है एक्यूट हेपेटाइटिस ए हो तो वो, और आपको जो मैंने भी बात की, शायद अल्ताफ आलम साहब की भी टॉक थी, फारूकी साहब ने भी, कि अगर हेपेटाइटिस बी की एक्यूट को आपने देखना है तो कोर आईजीएम है हेपेटाइटिस बी का। और हिस्ट्री की अच्छा, वो आसिफ ने हमने बड़ी अच्छी जिक्र किया कि वो आप क्योंकि कहीं ना कहीं से अगर इसको हुआ है तो इसको बड़ा हैवी लोड गया है कहीं से, यस कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुई है, कोई कोई डेंटिस्ट की कोई हुई, और समटाइम्स हमारे जो लोग हैं वो हिस्ट्री में कुछ चीजें वो इतनी बेजरत सी समझते हैं कि वो जिक्र करना भी पसंद नहीं करते कि जी कोई कंटेमिनेटेड इस तरह से एक्सपोजर हुआ है। तो इससे रिलेटेड मेरे ख्याल में आसिफ ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है कि इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, किसी का, आपके पास ऑप्शन है रेज हैंड की, आपके पास ऑप्शन है आ, आप चैट में भी दे सकते हैं। आसिफ, आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में शेख जायद में ऑब्वियसली आप करते हैं, तो हाउ मेनी, आपको कितना फ्रीक्वेंट देखते हो, और आपके ख्याल में सबसे कॉमन वजह क्या है अगर एक्यूट है बी और सी, जिस तरह ये को इन्फेक्शन का केस है? सर ये वही मेरे तो जैसे टीचर हैं अल्ताफ आलम साहब, वो ही ऑलवेज सेड स्मॉल मेडिकल प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जिसमें सबसे ज्यादा फैलता है। अगर आपकी केयर ठीक नहीं है, वर्स्ट मेडिकल केयर आप दे रहे हैं, दिस इज द बेसिक नीड जिसको हमें शायद और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। हमें अपनी एंडोस्कोपीज को अच्छी तरह से स्टरलाइज करना चाहिए। दूसरा, ये हमारे पार्लर जो बार्बर्स बैठे हुए हैं, ये बहुत रैपिडली हमारी पेशेंट्स इस तरीके से जैसे अल्ताफ साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि बी की वैक्सीनेशन पूरी दुनिया को होनी चाहिए, तो इसी तरीके से बी की वैक्सीनेशन नहीं हुई भी होती। अगर इस तरह की इस पेशेंट को वैक्सीनेशन अक्रॉस द बोर्ड सबकी हुई भी हो, तो इवेंचुअली ये इसको को इन्फेक्शन के चांसेस डेफिनेटली कम हो जाएंगे। फिर आपके जो गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज हैं, उसके साथ में भी इंस्ट्रूमेंट्स आपके ठीक नहीं होते बाजू का, तो वहां से भी आपका जो है ना कंटेमिनेशन के चांसेस, ब्लड आपका ठीक नहीं है, डेंटल प्रोसीजर्स हैं, टैटूइंग है, तो ये सारी चीजें हैं जिसके साथ में ये होता है। रिसेंटली जो मैंने अभी कुछ कम हुआ है, मुझे नहीं पता कितना एक्सपीरियंस था, कि ये जो सेहत जो सहूलत कार्ड पे डायलिसिस शुरू हुए थे, और इसमें हमें थोड़ा सा शक पड़ा था कि वो चूंकि रीइंबर्समेंट बहुत अच्छी नहीं थी, तो दे वर लाइक पॉसिबली री यूजिंग द डिस्पोजेबल्स, उनकी डिसइंफेक्शन बहुत अच्छी नहीं थी, या उसी पेशेंट पे तो वो अब, एंड देन दे सीन पेशेंट विद एक्यूट हेपेटाइटिस सी, स्पेशली ये जी जी। एक कॉस्ट कटिंग में अब अनफॉर्चुनेटली। ये जी। बिल्कुल एग्जैक्टली ये आई हैव सीन टू मेनी केसेस एट फरूक आल्सो, और शायद यही यू राइट ये वजह हो, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट्स अचानक एकदम से सर्ज आई थी जिसमें हेपेटाइटिस सी काफी लोगों को पॉजिटिव हो रहा था, देन वी नीड टू गिव ट्रीटमेंट फॉर दोस पेशेंट्स। जी, ये एक क्वेश्चन हाफिज जहीर साहब का है। एक्चुअली ये केस शायद आपने हाफिज साहब लेट थोड़ा ज्वाइन किए, इस केस को हमने डिस्कस किया है। मैं जस्ट समराइज आपको कर दूं कि अगर बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। यूजुअली सी मेन ड्राइवर होता है शुरू में, और अगर आप ये अगर तो वो बी का ट्रीटमेंट क्वालिफाई करता है तो बी का ट्रीटमेंट साथ ही शुरू होगा। अगर आप किसी वजह से समझते हैं कि बी बहुत एक्टिव नहीं है और आप सी का ट्रीटमेंट देते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट कि आप ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी और बाद में भी देखें कि हेपेटाइटिस बी का फ्लेयर तो नहीं हो रहा, क्योंकि इसके चांसेस होते हैं। और आसिफ ने ये भी बताया है कि कुछ लोग होते हैं जिनका सरफेस एंटीजन तो नेगेटिव होता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी कोर आईजीजी पॉजिटिव होता है। इन लोगों को भी आपने इग्नोर नहीं करना।
आमतौर पे तो हम सरफेस एंटीजन करते हैं, कोर नहीं कराते। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और पेरिफ्रीज में स्पेशली ये बात हमने पहले भी की थी। आप जब पेरिफ्री में अपने क्लिनिक्स में आपको हेपेटाइटिस बी और सी का मिलता है पेशेंट, मैं आपको ये जरूर एडवाइस करूंगा कि अपने नियरेस्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से जरूर जो है ना कंसल्ट करें। उसका रीजन ये है कि कल को कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो तो यू हैव सम प्लान के वो आपको आपको आपने उससे गाइड किया था। हम ये करते हैं कि अगर मेरे पास पेशेंट है या इवन आसिफ के पास भी जाएगा, तो हम जीपी को गाइडलाइन दे के भेज देते हैं, क्योंकि इतनी मॉनिटरिंग चाहिए नहीं होती, सिर्फ टेस्ट देखने होते हैं। अगर टेस्ट खराब हो तो आप दोबारा रब्ता करें। तो यूजुअली ये इस तरह से होता है। ट्रीटमेंट वही है जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, और ट्रीटमेंट में कोई ये नहीं है कि बी के लिए कोई स्पेशल वही दवाइयां हैं। ठीक है। आसिफ, एक और क्वेश्चन है कि विल दिस गाइडलाइंस विल बी द सेम अगर किसी को प्रेगनेंसी में होता है? इसका आप क्या जवाब देंगे? प्रेगनेंसी में अभी जो लेटेस्ट इमर्जिंग गाइडलाइंस आ रही हैं, डायरेक्ट एंटीवायरल्स अभी तो मैंने खुद से किसी को नहीं दी, क्योंकि डायरेक्ट एंटीवायरल्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। प्रेगनेंसी में जो बी वाला पेशेंट है, जिसमें हम लास्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, जिसमें हाई वायरल लोड हो, 200,000 से ज्यादा वायरल लोड हो, और उसमें हम प्रोफिलैक्सिस न्यूक्स देते हैं, जिसमें हम टू प्रिवेंट द वर्टिकल ट्रांसमिशन टू द बेबी, और उसमें इवेंचुअली हम डायरेक्ट एंटीवायरल्स, अब क्योंकि लेटेस्ट इमर्जिंग गाइडलाइंस वो न्यू बच्चों को भी देने लगे हैं ये डायरेक्ट एंटीवायरल्स। और जो WSLD की गाइडलाइन है उसमें ये लिखा हुआ है कि आप केस बाय केस दे सकते हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि व्हेन आई स्टार्ट गिविंग डायरेक्ट एंटीवायरल्स टू द प्रेग्नेंट लेडीज, ये अभी मेरे ख्याल में दिस विल बी इमर्जिंग फील्ड, इसको टाइम लगेगा। लेकिन बी के लिए यस, बी में हम थर्ड ट्राइमेस्टर में जब वर्टिकल ट्रांसमिशन को हमने कम करना होता है, तब हम डायरेक्ट एंटीवायरल न्यूक्स देते हैं हेपेटाइटिस बी को वर्टिकली ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए। और जब बच्चा पैदा हो जाए तो उसको हम अमीनोग्लोबुलिन्स देते हैं वेट बेस्ड। जी, थैंक यू। मेरे ख्याल में ये काफी अच्छा एक्सप्लेन हो चुका है। और ये ज़हन में रखें कि बी के लिए इस वक्त जो दवाई है वो TDF है, टेनोफोविर डिसोप्रोक्सिल फ्यूमेरेट। वो ये ज़हन में रखें, 300 मिलीग्राम की जो टैबलेट आती है। और थर्ड ट्राइमेस्टर में, और उसके बाद 2-3 महीने देते हैं, और उसके बाद आप फैसला करते हैं। अगर तो वो वैसे ही क्वालिफाई करते हैं तो ट्रीटमेंट विल देन कैरी ऑन। और सी के लिए वेट किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं होती है। मैंने भी अभी तक किसी को हेपेटाइटिस सी में वो उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं कभी शुरू कराया। और वी यूजुअली वेट प्रेगनेंसी, ब्रेस्ट फीडिंग, उस हाँ, अगर फाइब्रोसिस स्कोर ज्यादा है, अगर फाइब्रो स्कैन हुआ है या प्री में, तो फिर ये डिस्कशन की जा सकती है कि आप ट्रीटमेंट एक प्रायोरिटी बन जाती है। तो फिर आई मीन इफ द मदर इज नॉट लैक्टेटिंग, या आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं कि वो फार्मूला मिल्क पे आ जाए। और उसके तो आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट केस। आमना, अब आप आर यू विद अस? हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। तो आप काइंडली स्क्रीन शेयर करें, प्लीज गो बैक टू द केस नंबर 2। Case number 2, a 12 years old male, non-case of thalassemia major since 11 years, history of multiple blood transfusions, presented in OPD with fatigue and body pain. Currently, he is on tablet. ये डेस्फोराक्सामीन है, ये आयरन चिलेटिंग एजेंट है। 400 mg 2 OD, tablet ascorbic acid 500 mg once daily, and tablet folic acid 500 mg once daily. Abdominal ultrasound shows normal liver echo texture, no splenomegaly or ascites. Tests were advised, which were as follows. HB 6.5 on 12th August 2024, followed by 9.3 in September. TLC 5.1, now 4.1. Platelet count were 132, now 291. Urea 28 in August,
now 37. Serum bilirubin 1.1, followed by 1.3 and 2.6. LFTs are ALT was 232, followed by 102 and 490. AST 126 in August, followed by 106 and 381. Alkaline phosphatase 192, 178 and now 237. Blood sugar 89, anti-ACV positive, HBs antigen also positive, ACV RNA viral load 7,09,217 international units, HBV DNA virus 2,58,965. All right. 2.5 million है, sorry, 2.5 million, ये 2 crore Sorry, नहीं है. 25 million. Questions are, what other investigations are required in this patient and how do we manage this patient? Okay, let me just summarize it, Asif. Basically, it's a young boy, thalassemia major है और आपको multiple transfusion dependent है और fatigue, body aches, pain, iron chelation पे हैं ये क्योंकि इनके iron stores. मैं करता हूँ. हाँ. मैं करता हूँ, मैंने बनाया है. जी प्लीज गो अहेड. आप ये स्टॉप शेयर करेंगे कि हाँ जी. तो इसको जरा गौर से अगर हम देखें तो ये पेशेंट जो है ये इसे चाइल्ड 12 years old pediatric population है, having thalassemia major which is a hemoglobinopathy and multiple history of blood transfusions. He is in an iron overload condition and taking deferasirox, which is a chelating agent. So इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो एक तो इसकी कंसिडरेशन पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि ये बच्चा है और देन वी हैव टू इफ वी ट्रीट एंड देन वी नीड टू ट्रीट हिम करेक्टली. दूसरा ये एक खास थैलेसीमिया मेजर हीमोग्लोबिनोपैथीज व्हिच हैज बीन गिवन इन ईजल एंड AASLD गाइडलाइंस. इनके लिए एक अलग सी चीज है वो अभी मैं शेयर करूंगा. मल्टीपल हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफ्यूजन की वजह से आयरन ओवरलोड कंडीशन में है और ये डेफेरासिरोक्स ले रहा है विच इज ए चीलेटिंग एजेंट. तो सबसे पहले जैसे पहले बताया कि इस पेशेंट में भी उसी तरह डिटेल हिस्ट्री लेंगे एंड देन वी नीड टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द चाइल्ड बिफोर वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट. जैसे रिकमेंडेशंस हैं उसी में इसमें anti-HIV हम जरूर कराएंगे, HB कोर एंटीबॉडीज टोटल कराएंगे, anti-HDV IgM बिल्कुल देखेंगे. जैसे डॉक्टर असद ने अभी कहा anti-HEV और HAV IgM हम इसमें जरूर देखेंगे. And you need to discuss with your radiologist about the portal vein size, spleen size, and you must examine the patient by yourself. Fibroscan यंग बच्चे में प्लस माइनस सी बात है, लेकिन क्योंकि ये इसकी एक ओवरलोड की कंडीशन है जिसमें ये चीलेटिंग एजेंट ले रहा है, तो दैट इज द रीजन मैंने यहाँ पे लिखा है कि हम इसका फाइब्रोस्कैन भी शायद किसी स्टेज पे कराएं जस्ट टू सी कि पेशेंट डिकम्पनसेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि वी नेवर नो कि यंग बच्चा भी वो कई दफा F4 के साथ और चाहे क्लास C के साथ प्रेजेंट हो जाता है डिकम्पनसेटेड लिवर डिजीज के साथ. तो यस वी स्टार्ट द ट्रीटमेंट फॉर बोथ HCV एंड HBV बट वेट बेस्ड. अब उसको हम हमारे पास क्या रिकमेंडेशंस हैं वो ये हैं. The indication for HCV therapy in a patient with hemoglobinopathies or bleeding disorders. Patient with hemoglobinopathies or bleeding disorders should be treated with the same anti-HCV regime, following the same rule as HCV mono-infected patients. So, एक तो ये चीज रिकमेंडेशन आ गई कि जो इसको ब्लड का डिसऑर्डर है उसके अंदर हमने हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट वैसे ही देनी है और बी की प्रोफिलैक्सिस हमने वैसे ही देनी है जैसे हम अडल्ट को देते हैं. साथ में AASLD इन्फेक्शन HCV इन चिल्ड्रन, उसमें उन्होंने बताई हुई है कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में
without cirrhosis or with compensated cirrhosis. These are the options. इसमें glycopyrrolate है, pibrentacivir है, हमारे पास इसमें sofosbuvir और velpatasvir है जो 1 to 6 pan-genotypic है. It is recommended and duration जो है वो इसकी 12 weeks है. तो ये हम थेरेपी है जिसको हम दे सकते हैं. अब इस तरह का पेशेंट जब बच्चा है तो आई नीड टू गिव मोर टाइम एंड अटेंड दिस पेशेंट अकॉर्डिंगली, बिकॉज अगर इसकी दवाई सही नहीं दी गई और सही वेट बेस्ड मेडिसिन नहीं दी गई तो प्रॉब्लम होती है. तो व्हाट आई डू इन क्लिनिक, मैं सिंपल सा मेडस्केप का एक कैलकुलेटर वो उठा लेता हूँ और ये मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है कि व्हाट आई डू इन माय क्लिनिक इज, सॉरी मैं थोड़ा पीछे चला गया हूँ, हाँ, कि हेपेटाइटिस सी के लिए जब मैं वेल्पेटासिविर दे रहा हूँ, सॉफ एंड वेल्पेटासिविर, तो उसकी क्या इंडिकेशन है. सॉफॉस्फोविर जो है और वेल्पेटासिविर, अगर पेशेंट जो है वो 17 to 30 kg से लेस है तो हमने 200 मिलीग्राम सॉफॉस्फोविर एंड 50 मिलीग्राम वेल्पेटासिविर देना है डेली. एंड इफ ही इज मोर देन 30 kg तो फिर हम 400 मिलीग्राम ऑफ सॉफॉस्फोविर एंड 100 मिलीग्राम वेल्पेटासिविर देंगे फॉर हेपेटाइटिस सी. अब क्योंकि हम इस पेशेंट को, ये यूनिक पॉपुलेशन है और इसको हम कर रहे हैं क्योंकि हम बी को भी ट्रीट करना है, तो और साथ में इसमें ये अगर सिरोसिस आ जाती है तो उसके अंदर रिबाविरिन आपने ऐड करनी है, तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमने कितनी रिबाविरिन ऐड की है. फिर हमारे पास 3 ये ऑप्शंस आ जाती हैं, either to choose entecavir or tenofovir or deloxyfuran और tenofovir alafenamide. तो entecavir जो है वो अगर पेशेंट जो है वो 12 साल से कम है तो उसकी यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि लेस देन 2 years में सेफ्टी एंड एफिकेसी जो है ना एस्टेब्लिश नहीं है. लेकिन अगर पेशेंट का जो वेट है वो 30 kg से कम है तो आपने उसको 0.45 मिलीग्राम देनी है. अगर 30 से कम है तो 0.4 मिलीग्राम विच इज 8 ml एक सिरप अवेलेबल है जो आप दे सकते हैं. और अगर 30 मिलीग्राम 30 kg से ज्यादा है तो 0.5 मिलीग्राम 10 ml ओरल सस्पेंशन आप दे सकते हैं. इफ यू वांट टू चूज टेनिफोविर डाइलॉक्सिरेट फिरेट, उसमें आप जो है डीएफ देना चाहते हैं टेनिफोविर, तो उसमें फिर आपका जो है ना ये 30 kg अगर है उस पेशेंट का वेट तो उसमें फिर आप 250 मिलीग्राम 6 स्कूप्स पर डे देंगे. सबसे जो मुझे बेहतर लगी इन तमाम में वो टेनिफोविर एएफ है, जिसमें पीडियाट्रिक पॉपुलेशन के लिए जो दिया गया है, हमारा पेशेंट 12 साल से ज्यादा है तो 25 मिलीग्राम पर डे विद फूड हम दे सकते हैं हेपेटाइटिस बी की ट्रीटमेंट के लिए. जी सर. ओवर टू यू डॉक्टर सर. जी. लेकिन आसिफ, ये जो आप बात कर रहे हो, ये अभी हमारे पास तो वही है, हमारे पास तो स्टैंडर्ड टैबलेट्स ही अवेलेबल है ना हमारे पास तो अभी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इसमें ये टैबलेट्स ही अवेलेबल हैं, लेकिन हम ये डिस्कस कर सकते हैं. वी कैन कॉल द कंपनी पर्सन एंड वी कैन आस्क देम कि हम इस तरीके से करना चाहते हैं. लाइक यंग पेशेंट है, हम उसको अगर लेट्स सपोज वो 30 kg से कम है तो हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि हमारे पास अगर एक वेल्पेटासिविर आ रही है तो उसको सॉफ एंड वेल्पा आ रही है तो उसको हम हाफ टेबलेट ही करके दे सकते हैं. और टेनिफोविर एलाफिनामाइड जो है उसको हम 25 मिलीग्राम पर डे दे सकते हैं. जी ठीक है. एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस? आपने इसके ऊपर कोई कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई? ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है क्योंकि द प्रॉब्लम इज कि ये बच्चा ब्लड लगवाता रहेगा और हमारे यहाँ जो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये बहुत बड़ा चैलेंज है. हमसे अगर हम बहुत अच्छी क्वालिटी के टेस्ट भी कर लें तो एक विंडो पीरियड आता है जहां पे अगर एक बंदे को आज इन्फेक्शन हुई है हेपेटाइटिस सी से तो वो हो सकता है 4 से 6 हफ्ते लगे उसको
सीरो पॉजिटिव होने में। तो दुनिया तो अब जो है ना एंटीजन टेस्टिंग पे जा रही है ताकि वो उसको पिक कर सके एज अर्ली एज पॉसिबल। लेकिन हम चूंकि ये जो सीरो पॉजिटिविटी हेपेटाइटिस बी की और हेपेटाइटिस सी के जो रूटीन है, बहुत सारी जगहों पे आई एम श्योर अभी भी एलाइजा नहीं होता, वो किट मेथड से ही स्क्रीन करते हैं, जो कि उसकी सेंसिटिविटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी एलाइजा के साथ आती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ्टी है। हम कोर आईजीजी नहीं करते डोनर में। तो आई थिंक दिस इज समथिंग, क्योंकि और स्पेशली ये बच्चे जो हैं ये मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन और कॉस्ट कटिंग के चक्कर में तो दे आर, ये ऐसे ही है जो डायलिसिस वालों के साथ, बेचारों के साथ होता है। एग्जैक्टली सर, ये ही इज ए वेरी, ये वेरी डिफिकल्ट पेशेंट है। हमारे यहाँ देखें रिकमेंडेशन, हम जरूरी नहीं है कि हम रिकमेंडेशंस को फॉलो करें। अब मैं आई एम ट्रीटिंग ए पेशेंट, यंग चाइल्ड है, और वो मेरे पास आया, ही इज अराउंड लेस देन 30 kg, और वो प्यूर्स जैगुअर सिंड्रोम का था। क्लोनोस्कोपी उसकी हुई, एक दो हमने गैस्ट्रिक पॉलिप्स थे उसके रिमूव किए। ही वाज टोटली टायर की दुकान पे उसका बाप काम करता है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आया था उसका। तो बी की वैक्सीनेशन हमने कर दी, लेकिन मैंने उसको इंटरनेशनल रिकमेंडेशन से हटके सॉफ एंड डेक्लाडेसिविर दी। और मैंने कहा भाई अगर तू गरीब आदमी है तो आधी गोली जो है वो करके सुबह के टाइम आप दे दें इसको, और 3 months के लिए आप ट्रीटमेंट दे दें, दैट्स इट, इज नॉन सिरोटिक। तो यू कैन आई मीन ट्रीट द पेशेंट आउट ऑफ द गाइडलाइंस एज वेल। लेकिन आपने सिर्फ आपने क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ हिज एचबी, क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ हिज लिवर फंक्शन टेस्ट, and he will be continuing the chelating agent for what he is taking for his iron overload condition. आप स्टॉप शेयर करोगे जरा एक हाफिज आसिफ ने जी, एक क्वेश्चन किया है। हाँ जी, एक क्वेश्चन था डॉक्टर साहब का, हाफिज साहब का, वो थोड़ा सा मैं पढ़ नहीं सका कि अगर, मैंने पढ़ा है सर। वो हाँ कहते हैं कि आज, बी और सी दोनों पॉजिटिव हैं, और अगर उसको ट्यूबरकुलोसिस भी है तो उसमें क्या करेंगे। जी तो डॉक्टर हाफिज, मैं ना एक इसमें एक सिंपल सा रूल है कि whenever there is a tuberculosis, whenever you are treating the patient with ATT, आप एंटी कन्वल्सेंट्स देंगे, एंटी कोआगुलेंट्स देंगे, एंटी एरिथमेटिक्स देंगे, ये एंटी फंगल देंगे। you need to be looking after for interactions। अगर ऐसा पेशेंट है जिसको acute viral hepatitis B और C दोनों हैं और आप ट्रीट कर रहे हैं, और उसके ट्यूबरकुलोसिस को इज ए क्रॉनिक इन्फेक्शन, वो अभी इतना कोई एक्टिवेट नहीं हुआ, तो आप 3 महीने डायरेक्ट एंटीवायरल सी के दे के, और अगर उसकी हेपेटाइटिस एलएफटीज उसके नॉर्मलाइज हो जाते हैं, उसका लिवर कुछ बेहतर हो जाता है, then you should wait and then see the interactions of different drugs, and then you treat the patient for the tuberculosis with the tuberculosis। जी, मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। बी और सी के साथ तो कम देखा है, लेकिन अगर इस तरह होता है तो यूजुअली जो मैं रास्ता लूंगा कि मैं उसको बी की दवाई शुरू कर दूंगा और एटीटी दूंगा, क्योंकि आपको एटीटी को देकर जो भी ट्यूबरकुलोसिस है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाना है। एक और चीज जो मुझे फिक्र होगी वो ये होगा कि उसको ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी तो नहीं होती। आपको पता है ये पायराजिनामाइड, आइसोनाइजिड, राफेम्पिसिन, ये तीनों दवाइयां हेपेटोटॉक्सिसिटी करती हैं। तो अगर मेरा पेशेंट 2-3 महीने स्टेबल है और कोई इशू नहीं है, और फिर अगेन एक तो तरीका ये है कि जो कि 6 महीने दवाई, जो भी आपका प्लान है आपने वो दे दी और उसके बाद हेपसी का ट्रीटमेंट कर दिया। दूसरा ये भी है कि आप 2 महीने के बाद भी शुरू कर दें, सिवाय इसको कि वो आप एकदम बहुत सारी मैदान जंग बना देंगे उसको। लेकिन ये है कि सर ये ना, इसमें हाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, यू तो नीड टू बी सीइंग योर पेशेंट कि what he wants from you now। जी अगर तो you're right, your approach is absolutely right। अगर active tuberculosis है and he is dying with the tuberculosis and you need to catch up with the tuberculosis fast, you need to take the train of the tuberculosis fast, all right, B ये approach बिल्कुल ठीक है। आप B की दवाई शुरू करें, C को वेट करें, and then you treat the hepatitis tuberculosis, and then
बाद में जब बेहतर हो जाए तो 3 महीने के लिए आप उसको हेपेटाइटिस सी का कर दें। यू आर राइट, ये डिफरेंट पेशेंट्स के ऊपर यू नीड टू मॉडिफाई योर ट्रीटमेंट मोडालिटीज अकॉर्डिंगली एंड मॉडिफाइड टेलर्ड करके करना पड़ता है, बिकॉज हर बंदा जो है ना वो डिफरेंट तरीके से है। इसमें एक और चीज, ये सारे पेशेंट्स आपने सही कहा कि जिस तरह डायरेक्ट ये ट्यूबरकुलस ड्रग्स की भी बातें हैं, उसके साथ में INH और रिफैपेजिन का, ऐसे पेशेंट्स हकीम की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स जो हैं होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो यू नीड टू काउंसल दीज पेशेंट्स टू डू नॉट टेक दीज मेडिकेशंस, खास तौर पे हकीम मेडिकेशंस, बिकॉज डायरेक्ट ड्रग रिलेटेड लिवर इंजरी अगर हो जाती है उसके साथ तो फिर प्रॉब्लम होगा। और इसमें आप का ये क्वेश्चन बड़ा पर्टिनेंट है। जो एक चीज मैंने पहले भी जिक्र की थी, प्लीज आप फाइब्रोसिस स्टेज को जरूर असेस करें। फाइब्रोस्कैन की एक्सेस है, फेयर इनफ। अगर नहीं है तो सिंपल टूल्स है, एप्री, आपको सिर्फ AST और प्लेटलेट्स चाहिए, और एप्री अगर मोर देन 1.5 है तो इसका मतलब है कि उसको फाइब्रोसिस है। और उसकी जो इम्प्लीकेशन है कि जब ये हो तो थोड़ी सी ट्रीटमेंट अर्जेंसी होती है, थोड़ा सा नहीं बल्कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उसको सिरोसिस या कंपनसेटेड डिकम्पनसेटेड उसकी तरफ आप देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा वो आपके इनिशियल वर्कअप का भी हिस्सा होता है, और फॉलोइंग ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग आपने उसको फॉलो करना है, every 6 months with alpha fetoprotein and ultrasound for HCC in liver। ये लाइफ लॉन्ग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग इसको मिस कर जाते हैं। और हमने बहुत सारे मरीज आप देखते हैं जो आज से 2016 में, 17 में, 15 में इलाज हुआ, कईयों को इंटरफेरोन लगे पहले, इससे पहले, और वो अब लिवर ट्यूमर्स के साथ, वो तो कहते हैं कि हमारा तो बिल्कुल ठीक हो, वायरस उनको उस वक्त भी नेगेटिव होता है, लेकिन दे हैड advanced fibrosis at that time and they had this inherent risk for development of HCC। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो फॉलो अप है इसको आप इसको जहन में रखें। any other question? ओके, मैं आपको बताता चलूं कि ये जो कमिंग वीकेंड है, सैटरडे एंड संडे, लाहौर में वी हैव पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी एनुअल मीटिंग। और इट वाज इनिशियली सपोज टू बी एट कोयटा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हुआ तो उससे हमारी फैकल्टी बहुत ड्रॉप आउट होगी, तो वी shifted it to Lahore in rather emergency, क्योंकि we didn't want कि हम इसको postpone करें या इसको वो कर दें, all together खत्म कर दें। तो all of you who are interested, निशात होटल जो एम्पोरियम मॉल के साथ है, वहाँ पे सैटरडे को फुल डे है from 9 AM to 7 PM, एंड संडे को जो है from 9 to till lunch। तो प्लीज डू ज्वाइन। मेरे ख्याल में आप सब लोगों को पता है कोई ऐसा इशू नहीं है, और आई थिंक वी विल बी डिस्कसिंग रेंज ऑफ इश्यूज इन दैट मीटिंग। तो really grateful, Asif, thank you very much for your time. I mean, always a pleasure to have you with us. Kiran, over to you, please. Thank you very much, Dr. Asif. So अब लास्ट हमारा इस सीरीज में सेशन HBV immunotherapy and chemotherapy Dr. Raja Ikramul Haq के साथ होगा। It will be on 18th September। For timely registration, please share your email address with Gets Pharma representative or Uzair, our coordinator। इनका फोन नंबर और email address बैनर के ऊपर मेंशन होता है। हम registrations usually मंडे को 12 बजे तक क्लोज कर देते हैं। So looking forward कि आप इस सीरीज का लास्ट सेशन जरूर अटेंड करेंगे। एंड वी आर ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर टीम एट पारसा ट्रस्ट इन पारसा एको पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज। उज़ैर, प्लीज यू कैन कॉल ऑफ द मीटिंग। Sure, ma'am, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।